औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो इस सबक का दफान दे है नाइन्थ क्लास इंग्लिश का जो इस सबक है इसका जो एक सवाल नंबर 8 था, अभी ये बाकी था। तो हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वो कैसे थे? टॉमी सेज द ओल्ड टीचर्स वर ह्यूमंस। Margie said that how could humans be teachers? humans कैसे टीचर्स हो सकते हैं? टॉमी रिप्लाइड, टॉमी ने जवाब दिया, इट वॉज पॉसिबल एंड दे टॉट, गेव होमवर्क एंड हेल्ड टेस्ट। तो इस तरह ये सवाल नंबर 8 है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, what are the main features, what are the main features of the mechanical teachers and school rooms and Margie, that Margie and Tommy have in this story? ने मर्जी और टॉमी को इस स्टोरी में जो टीचर्स मिलते हैं, मैकेनिकल टीचर्स होते हैं और स्कूल रूम्स होते हैं, तो उनके फीचर्स क्या हैं? तो मैकेनिकल टीचर्स के जो फीचर्स हैं, कंसिस्टेंस ऑफ गुड ऑडियो वीडियो सिस्टम विद स्क्रीन डिस्प्ले, lessons, the lessons, homework as well as tests. It speaks a mechanical voice and tone. It can also be adjusted to the level of various age groups. It has slots to put in homework, tests, etc. It can also give a quick feedback to whatever is put in it. तो हाँ, it can store large information. Its screen is its page and it can display countless words. Above all, और इसके अलावा क्या जो सबसे बेहतर है, क्या करेगा, इट इज ऑलवेज देयर and student can study at his own convenience as per school rooms. स्कूल रूम्स जो है, इट इज़ नॉट स्पेशल बिल्डिंग, इट कैन बी एनीवेयर a place where an audio video system can be placed with a screen, but it is as lonely as anyone can be. The student is a class by himself or herself. Moreover, the classrooms can be uttered dismay. The mechanical teachers develop a snag, and there is complete absence of friends, fun, chatting. In short, school rooms are gloomy, lonely when compared with an old school room full of hustle and bustle. तो ये इसका ये क्वेश्चन है। अब फाइंड सेंटेंसेस इन द लेसन। लेसन में हमें सेंटेंस ढूंढने हैं, जुमले ढूंढने हैं, विच फ्रॉम द एडवर्ब्स गिलो, यानी कि जो नीचे एडवर्ब्स दिए गए हैं वो किन सेंटेंसों में इस्तेमाल किए गए हैं लेसन में, उनको हमें ढूंढना है। आवफुल वर्ड है, एडवर्ब्स का है आवफुली। इट वाज आवफुली फनी, तो ये सेंटेंस आपकी किताब में होगा इस सबक में। sorrowful, sorrowfully, he had shaken her head sorrowfully. तो complete, completely, history sector had blanked out completely.
या अच्छा, तो ये हमें सबक में से देखना है। लॉफ्ट, लॉफ्टी, लॉफ्टीफुली, ही एडेड लॉफ्टफुली। तो इस तरह यहाँ पर ये दिए गए हैं, ये सेंटेंस दिए गए हैं और ये वर्ड्स दिए गए हैं, तो एडवर्ब्स दिए गए हैं। यानी कि ये एडवर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, ये आपकी बुक में वो सेंटेंसेस हैं, तो ये वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स पर ये एडवर्ब, इन वर्ड्स पर ये एडवर्ब्स बनाए गए हैं, ये एडवर्ब्स बनते हैं और आपकी इस सबक में ऐसे वो सेंटेंसों में इस्तेमाल हुए हैं। अब ये सवाल है, now use the above adverbs to fill in the blanks in the sentences given। अब जुमले दिए गए हैं, उनको हमें ब्लैंकों में, खाली जगहों में पुर करना है। The report must be read dash so that performance may be improved। At the time of interview, Samir answered our questions, shrugging his shoulders dash, we all behave dash when we are friend or when we are tired or hungry, when we are tired or hungry. The teacher shook her head dash when Ravi lied to her. I forgot about it dash when I complimented when I complimented Rivathi on her success. She just smiled and turned away dash. The president of the company raised his head and dash. I finished my work so that I might go out to play dash। तो पहले को आएगा केयरफुली, यहाँ पर रीड टू बी, मस्ट बी रीड केयरफुली, और यहाँ पर awfully shoulders awfully, एंड यहाँ पर है we all behave differently, एंड यहाँ पर है the teacher shook her head sorrowfully, and I forgot about it completely। तो फिर है when I complimented Rivathi or on her success, she just smiled and turned away uh, monochalently। एंड इसी तरह the president of the company raised his head and spoke loftily, and I finished my work so that I might go to play quickly। ये वाला है। तो इसके बाद है मैच एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। एंग्री, एंग्रीली, नॉइज, नॉइजीली, हैप्पी, हैप्पीली, टाइडी, टाइडीली या टीडी, टीडीली, और मेरी, मेरीली, ग्लूमी, ग्लूमीली, और स्लीप, स्लीपीली, थॉटफुल, थॉटफुली। तो यहाँ पर ईज, इजीली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। अब कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। कंडीशनल होता है जिसमें कोई शर्त होता है, कंडीशनल। इफ आई, इफ यहाँ पर है इफ, जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं अगर। इफ यू, यहाँ पर है अनलेस, जब तक, जब तक। तो इसी तरह इफ आई डू नॉट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट, शी विल बी एंग्री, शी विल बी एंग्री। वो एंग्री हो, वो उसको गुस्सा चढ़ जाएगा। क्यों गुस्सा चढ़ जाएगा? कि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँ। यानी कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ यहाँ तक ये सेंटेंस बोल देंगे तो
यहाँ पर ये अधूरा है जब तक हम इसको ये वाला हिस्सा ना मिलाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँ, अगर मैं उस पार्टी में नहीं जाऊँ तो फिर क्या होगा? शी विल बी एंग्री। तो ये कंडीशनल बन गया है इफ की वजह से। इसी तरह इफ यू डू नॉट टेलीफोन द होटल, अगर आप होटल को टेलीफोन नहीं करोगे तो फूड ऑर्डर करने के लिए यू विल मिस योर मील, आपका वो मील नहीं मिलेगा। अनलेस यू प्रॉमिस टू वर्क टू राइट बैक, जब तक आप ये वादा नहीं करोगे कि मैं वापस आपको लिखूं, आई विल नॉट राइट टू यू, मैं भी आपको नहीं लिखूं। तो अनलेस जब तक, इस तरह इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम शी विल ग्रो ओबेसिटी, अगर वो कोई खेल नहीं खेलेगी वो ओबीज हो जाएगी, यानी कि उसका वजन बढ़ जाएगा। अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, जब तक वो छोटे छोटे परिंदे जल्दी ना चलें, द कैट विल पाउंस ऑन इट, यानी कि जब तक वो छोटा अच्छा ये लिटिल बर्ड, जब तक वो छोटा बर्ड चलेगा नहीं, भागेगा नहीं जल्दी, तो कैट उस पर चिपक जाएगी। तो इस तरह ये सवालत हैं आपके इस सबक द फन दे हैड, इस तरह ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप वो काफ़ी करते होंगे। इंशाल्लाह स्कूल आने पर हम आपकी इस कॉपी को देखेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।